how to respond when my father-in-law, wife's father, interferes between me and my wife, trying to lord it over us and influence personal matters and family decisions. I am angry and I find it difficult to forgive him. But I am wrong. I should forgive, and I keep praying that I want to forgive. How to deal in this case with my father-in-law? जब मेरे ससुर, पत्नी के पिता, मेरे और मेरे पत्नी के बीच दखल-अंदाज़ी करते हैं, हम पर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं और पारिवारिक फैसलों में निजी मामलों को प्रभावित करते हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं गुस्सा हूँ और उन्हें माफ़ करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर देना चाहिए और मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि मैं माफ़ करना चाहता हूँ। इस मामले में मैं अपने ससुर के साथ कैसे पेश आऊँ? Yeah, again, this is the dynamics of family relationships can be complicated. और फिर एक बार ये हर परिवार से परिवार अलग होता है और परिवार के कुछ संबंध कभी-कभी कठिन हो सकते हैं। Um, it's God has drawn clear boundaries but around a husband and wife to be separate from her parents and his parents. और परमेश्वर ने पति-पत्नी के इर्द-गिर्द एक सीमा बनाई है और उन्हें अलग किया है उस पति के माता-पिता से भी और पत्नी के माता-पिता से भी। I think the question asked about forgiveness, that you must forgive regardless of how somebody treats you. अब जब बात आती है क्षमा करने की, तो वो तो आपको चाहे आपसे कोई कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, आपको क्षमा करनी है। But how to deal with the father-in-law or mother-in-law, as the case may be, again, is, I think, a specific circumstance that a godly elder in your local church will be able to give you advice on. और फिर एक बार एक ससुर के साथ बर्ताव कैसे करें, उनका सामना कैसे करें, ये एक विशेष परिस्थिति हो गई। इसके बारे में आपको अच्छी सलाह कोई ईश्वरीय स्थानीय प्राचीन दे सकता है। But maybe I'll just close with a couple of questions that are asked often and recently even have been asked, and that is one is I think about relationships with people of another faith or other religions. I should say very plainly that if you're a believer and you're interested in marrying somebody who is not a believer, I would wonder if you're actually a believer. और मैं कुछ और सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, विशेषकर एक ऐसा सवाल है जो मुझे कई बार पूछा भी गया है। एक विश्वासी का ये सवाल है कि क्या वो अविश्वासी से विवाह कर सकता है? और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति ये सवाल करता है, तो मुझे ये प्रश्न पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति विश्वासी है भी या नहीं? But you read the multiple times in the New Testament about how, as believers, we a true believer will not want to have anything to do with the the darkness, no matter how attractive it is. और नए नियम में हम कई बार पढ़ते हैं कि जो एक सच्चा विश्वासी है, उसे अंधकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अंधकार कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। And so, if you are considering or are in a relationship with somebody else who's not a believer, it has to end. और अगर आप एक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो विश्वासी नहीं है या पहले से उसके साथ किसी संबंध में हो, तो वो संबंध आपको खत्म करना होगा अगर वो विश्वासी नहीं है तो। And finally, a question that young people ask is relating to modesty and how to dress modestly. और एक और सवाल है जो कई बार जवान लोग भी पूछते हैं कि एक शालीनता से वस्त्र पहनना जो किसी को प्रभावित ना करे, ऐसे वस्त्र कैसे पहने? And I'm very glad that young people ask such questions. और मैं बहुत खुश हूं कि जवान लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। And I'll just say two things that advices that I was given and that I pass on to other young people दो चीजें मैं कहना चाहता हूं जो सलाह मुझे दी गई और जो मैं is दूसरे जवानों को देता हूं। do you feel that Jesus would be glad with what you wore? मैं पूछना चाहता हूं क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह खुश होगा जो आप पहनते हैं उससे? If you were walking with Jesus, would he feel uncomfortable with what you were wearing? अगर आप यीशु के साथ चल रहे होते तो क्या यीशु को बहुत मुश्किल होता कि आप जो पहन रहे हो उससे? Or would he see that as you both are walking down the street, all everybody's looking at you because of what you're wearing? या यीशु ये देखता कि जब आप और यीशु सड़क पर चल रहे हो तो सब लोग घूम-घूम कर आपको देख रहे हैं क्योंकि आपने ऐसे वस्त्र पहने हैं। And when you put those clothes on and you look in the mirror and you think, you know what, I don't know if this is what I should wear. Better to be safe and wear something different.
और जब भी आप तैयार होते हो और आप एक आईने में खुद को देखते हो और फिर आपको सवाल पड़ता है कि मैं नहीं जानती कि ये वस्त्र उतने अच्छे हैं या नहीं, जब भी आपको ये संदेह हो, सबसे अच्छा यही है कि आप कुछ और पहन कर जाए। If you have even a little hesitancy, it's better to wear something that's more modest if you have hesitancy. अगर आपके अंदर थोड़ी भी हिचकिचाहट है कि मैं ये पहनूं या नहीं, जब भी ये हिचकिचाहट है, बेहतर है कि आप और थोड़े से शालीन वस्त्र पहनकर जाए। Secondly, ask your parents or a godly elder about your clothing. और दूसरी बात, अपने माता पिता से या किसी ईश्वरीय प्राचीन से पूछे आपके कपड़े पहनने के ढंग के विषय में। If you have God-fearing parents or even, non-Christian parents, many of them will know modesty. Some of the other religions have higher standards of modesty. और अगर आपके परमेश्वर का भय मानने वाले माता पिता है, और यहाँ तक कि आपके माता पिता गैर मसीह क्यों ना हो, क्योंकि कई बार विधर्मी लोगों की भी जो शालीनता के विषय में उनके अच्छे या अच्छे मापदंड होते हैं। And if you're out of the home or you don't have parents that you can ask like that, ask your elders in the church. और अगर आप घर से दूर हो, आपके माता पिता नहीं है, तो आप कलीसिया के प्राचीनों से पूछें। Ask them and say, do you think you have any concern with how I dress? Is it modest? और उनसे जाकर पूछिए कि आपको कोई तकलीफ है क्या जिस तरीके से मैं कपड़े पहनती हूँ, या आपको लगता है वो शालीन है क्या। Because it's quite possible that some young person may be dressing in a way that they don't realize is a temptation to others. क्योंकि कई बार ये संभव है कि कोई जवान व्यक्ति एक ऐसे तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि दूसरों को उससे समस्या हो सकती है। And uh, as an elder, if a young sister came to me and says, "Can you give me some advice? Because I don't have a father to tell me," I would think it can go very well with such a person. और अगर कोई, मैं खुद एक प्राचीन हूं, अगर कोई जवान बहन आकर मुझसे कहती कि भाई क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हो, मेरे पिता नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे बहन के साथ आगे बहुत अच्छा होगा।